जैसे कि आपने देखा कि पिछले वीडियो में दीपक भैया ने पुष्कर सरोवर के महत्व और ब्रह्मा जी के मंदिर से जुड़ी कथा के बारे में हम सभी को बताया था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हमें सावित्री माता के मंदिर भी ज़रूर जाना चाहिए। तो फिर हमने बिल्कुल ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े सावित्री माता मंदिर की ओर। हमने ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब हम सावित्री देवी के मंदिर जा रहे हैं और साथ ही वहाँ पे गायत्री देवी का भी मंदिर है। सावित्री देवी जो कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है और गायत्री देवी जिनसे उन्होंने यज्ञ के टाइम पे शादी करी थी, यज्ञ के टाइम पे उनका विवाह हुआ था उनसे। गायत्री देवी जी उनकी दूसरी पत्नी हैं, तो उनकी ब्रह्मा जी की जो पत्नियाँ हैं उनका अलग से मंदिर है। यहाँ पे अभी तो उसका व्यू नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूँगी पूरी पुष्कर नगरी। ऊपर एकदम चोटी पे ये पहाड़ है, आगे उसकी चोटी पर आपको सावित्री देवी का मंदिर दिखेगा। अभी तो हम सावित्री देवी मंदिर तक जाने के लिए पैदल रास्ता भी है और ये रोपवे भी है, ट्रॉलीज जाती है। आपको दिखाना चाहूँगी, हमने रोपवे का टिकट ले लिया है और अब हम वेटिंग लाइन में खड़े हैं और वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे आगे कुछ फॉरेनर्स खड़े हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, can we just talk with you for a while? We were just recording it. Okay. Are you okay with it? Okay. Just your experience about here. She doesn't speak English. She doesn't speak English. Okay, it's okay. What is your name? Megan. Sorry. Megan. Meghan. Yeah, that's it. Your? Elise. Alice. Chloe. Chloe. Wow. Okay. Where are you from? From France. You all from France. Yeah. You all three are friends? Yes. Okay. Your first time in India, have you been here before? It's my first time in India, but we came from Goa just before we arrived here. Okay, your first time in India, but after Goa, you arrived here. Right now we are in Pushkar. Yeah, So what was what's your experience so far? in Pushkar. Yes. I can see you're wearing an Indian outfit. It's lovely. You're looking lovely. Thank you. The experience is very different than the south. Have you been to Brahma Temple? No, not yet. We just arrived to Pushkar yesterday, so we just discovered Pushkar. It's our first day here, so we have a lot of to discover. We see the Pushkar Lake. Do you know where we are going to? I'm not know yet. We are going towards a temple. Yes. Yes. We first visited the Brahma temple and now we are leading towards his wife's temple. Okay, we didn't knew that. It's okay. I saw Brahma Temple this morning, and we thought that maybe we can go to see the festival in the streets of Pushkar, and Yeah, then definitely. You are here to explore everything. That's the main purpose. that's it. Okay. Great. How do we say hello in French? Bonjour. Bonjour. I am learning. Bonjour. Bonjour. Yeah, that's it. Yeah. You said it's been more than 2 months you here. So, like, according to you, what's the most interesting part about India, and what is the thing that you feel weird? Like something you move to different countries, you get to know about different cultures. There's something that attracts us the most, and there's also something that which is strange. Yeah. Okay. The two things that I like the more in India is the colors and the food. I think it's really amazing. And what I feel strange about would be the plastic everywhere, because in Europe now we stopped to throw plastic on the ground. So see that here it's normal still, even if, like for example, we know now that you can get some microplastics when it goes to the oceans, and those microplastics are really bad for everyone. Animals, trash everywhere, so you just have to keep your thing, and the government put also the trash, the bins, yeah. So like this you just have to go, so I see also that it's hard to find somewhere to throw the trash also here, so it's like
difficult to find the balance. But yes, it's also, we can see that for people it's really normal, like you eat something and you just throw on it on the floor. And for me as French, it feels really weird to see that, because we cancel this kind of It's very awful to see all plastic all around here. Yes, I'm from Delhi. I did ask you, like, what do you do? Are you students? Or? I'm nurse. I'm not student. Yeah. I'm a psychomotor therapist. Yes. Therapist for children. The name is psychomotricity, so the link between the mind and the movement. And it's like general therapy where we do activities to help the person to feel better with her body and her mind. And she's working on emergency. She answers the call when someone have a problem. He calls the hospital, and so she answers. And All three are related to the medical field. Yeah. That's it. Is that the way you got friends? Like, no, she's my roommate in Bordeaux. And we are traveling with our boyfriends, and they are cousin. Our boyfriends are cousin. okay. Yeah, Your friends are cousins. yeah. And our boyfriend. My boyfriend is her boyfriend's cousin. Your boyfriend is her boyfriend's cousin. Yeah, that's it. What is your name? My name is Filippo. Filippo. Okay, where are you from? From Italy. From Italy. So, as my father asked you for a dialogue, for a Bollywood dialogue, I just know some words in Hindi. can you say Just like chalo, Chalo? aram se, must, and the most important one, kit kit mat kar. Kit kit mat kar. I think it means stop. Shut up. Shut up your mouth. Yeah, they told me that. You're just talking nonsense. It means shut your mouth. There's a very famous meme going on, which goes like, "Chori bachi ho kya?" Chori bachiyo ka. What does it mean? Small girl. Like, you're not a small girl, but you're behaving like a kid. Ah, okay. Where are you from? Italy. She's my sister. Yeah. Brother and sister. First time in India? First time in India. Yeah. In Pushkar as well. In Pushkar. Yeah, we arrived yesterday. Your first city, like, is No. I was in Maharashtra for 1 month. Then I moved to New Delhi. I met her. We made New Delhi, Agra, Jaipur, and Pushkar now. My name is Harry. Harry. Where are you Yes. from? I'm from Australia, Sydney. Sydney, Australia. Sydney, Australia. Yes. Okay. Your experience about India. Which one? Which experience? What's the most attracting part of India, according to you? Well, I have visited 3 times. Sorry? This is my 3rd visit. Okay, this is your third visit. That's correct. What made you return? To travel again, to see India, see different parts of India. Okay, so how many cities have you been so far? No idea. Many cities. I- That's many, been. many cities. I did Okay. not count. Okay. But I have been to many cities for the first time, like Leh Ladakh and Tuk Tuk, and places in the mountain. Okay. Have you been to Uttarakhand? To where? Uttarakhand, in the northern part of. No, I don't think so. Okay. So I have travelled in Nepal. I have travelled in Nepal for many years, and I would like to go onto the Indian side because I had some Indian friends I went trekking with. That's great. Yes. Okay. Do you know Shah Rukh Khan? Sorry? Shah Rukh Khan? Chopin, the piano player. No, Chopin. he's a famous actor in India. Okay. I don't know any famous actors. He's a cricketer. Oh, okay. Do you watch cricket? No, I don't. He's not a cricket fan. I'm not a cricket fan. But He doesn't like cricket. so I have been to a wedding in Chennai for a friend, a Vietnamese friend, who married an Indian man. You must have tasted different cuisines. Yes, many different cuisines. Any favorite dish? Which Oh yeah, kingfisher. Kingfisher. Every dish. What is on in UK? I think it's like chicken soup. Pisamala is in UK. But yeah, some places where I eat is no English.
So you say, I have this one. Just randomly pick anyone. Yeah. Or you look at the table and say, what this person eats, I try. If they look happy. पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु सावित्री माता के मंदिर के दर्शन करने के लिए अवश्य जाते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपकी पुष्कर यात्रा को संपूर्ण माना जाता है। सावित्री देवी मंदिर में 3 मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के बीच में स्थित है सावित्री देवी की मूर्ति, जबकि मंदिर की दाहिनी तरफ देवी शारदा की प्रतिमा विराजमान है और मंदिर की बाईं तरफ है देवी सरस्वती की। करो वीडियो ये? हाँ। एक और सावित्री देवी मंदिर राजस्थान के पुष्कर शहर में रत्नागिरी पहाड़ी पर 750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से वहां से पुष्कर शहर और आसपास की घाटियों का बहुत ही मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। वो सामने पुष्कर सरोवर है और वहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, लेकिन खड़ी चढ़ाई होने की वजह से बुजुर्ग श्रद्धालुओं को सीढ़ियां चढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए यहाँ पर रोपवे की सुविधा भी है। समय की कमी होने की वजह से हम लोग भी रोपवे से मंदिर तक पहुँचे थे, जिसमें कि एक आदमी का रोपवे से आने जाने का किराया 160 रुपये था। अगर आप भी पुष्कर आते हैं तो सावित्री माता के मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आएँ, जो कि हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। लेकिन अगर आप रोपवे के थ्रू आना चाहें तो रोपवे ऑफिस सुबह 8 बजे के बाद ही खुलता है। ये मैं खड़ी हूँ देवी सावित्री के मंदिर में, और देवी सावित्री के मंदिर से ही जो दूसरा मंदिर अटैच्ड है वो देवी गायत्री का है, यानी ब्रह्मा जी की जो दोनों पत्नियाँ हैं उन दोनों के ही मंदिर यहाँ पे हैं। इधर लाए थोड़ा कैमरे को, ये देखिए इस तरफ ये जो पैदल रास्ता है आने का, और हम आए थे ट्रॉली के रास्ते। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा। पूरी पुष्कर नगरी दिख रही है यहाँ से, कितना प्यारा, कितना अच्छा दृश्य है, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे सनसेट का। इस मंदिर का दर्शन करने के लिए हिंदू लोग तो आए हैं, साथ ही साथ सारे विदेशी सैलानी भी आए हैं। हिंदू धर्म है ही ऐसा जो सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये सब लोग यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करने आए हैं। बहुत ही मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब है यहाँ इस जगह की। बहुत से लोगों से हम मिले भी, वो यही कह रहे थे कि भारत जैसी कोई दूसरी जगह नहीं है। एक बार मेरे साथ इधर देखो। भाई साहब आप भी खाएंगे? बाप रे, इनकी पूंछ कितनी लंबी है। पैकेट ही लेके भाग गया, पैकेट ही लेके भाग गया ये। चलो मंदिर के दर्शन कर लिए हमने, अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सनसेट हो ही गया है और ट्रॉली से आए थे, अब ट्रॉली से ही नीचे जा रहे हैं। आपको व्यू दिखाती हूँ। सनी देओल को कैसा लगा? सनी देओल का एक्सपीरियंस पूछते हैं। अभी तो फिलहाल डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कब पहुँचेंगे नीचे, काफ़ी डर लग रहा है मुझे। और इन गुणियों को हमारी भाषा में गुणी कहते हैं। इन बंदरों लंगूर लंगूरों को, इन लंगूरों को हमारी भाषा में गुणी कहते हैं।
गढ़वाली भाषा। गढ़वाली भाषा में। हमारी भाषा गढ़वाली भाषा एक ही है। आपको मजा आया? इधर इधर कैमरे की तरफ। बंटी थोड़ा सा पीछे हो जाओ आप। मज़ा आया, एक बार ऐसे मज़ा आया। मज़ा आया, और मैं ये मज़ा भारत के हर आदमी को देना चाहूँगा। इनफैक्ट इन गुणियों को भी। इनफैक्ट इन गुणियों को भी। इनके लिए मैं इनके लिए शट अप, कब बोला कर। वो भी तो नहीं बना रहे। लाइट्स ऑन हो गई है बिल्कुल। हो ही गया यार सनसेट, सही कह रहे थे पापा। ऊपर लग रहा था अभी थोड़ा टाइम और है। हाँ, एकदम से अंधेरा जल्दी हो जाएगा। सही बाहर निकल गए हम जल्दी। देखो सरोवर के पास हो गए हैं लाइट्स। ऑन कर दिया हमने लाइट्स इधर। हम लोग जोधपुर से हैं। जोधपुर से हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जाके। और जिसमें ये मंदिर की परिक्रमा बोलते हैं, बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ का ये। तो हमने भी आज मैंने कहा चलो ठीक है पैदल ही लगाते हैं। हमको यहाँ आके बहुत ही अच्छा और सुकून लगा है, बहुत ही सुकून मिला है यहाँ आके। और यहाँ देखने लायक है। हमने 52 घाट की भी परिक्रमा की है यहाँ पे। 52 घाट स्नान किया है हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आए सावित्री मंदिर में। और अब निकलेंगे हम लोग जयपुर के लिए निकले। हाँ जी। आप? ये परिक्रमा बहुत अच्छी लगी। इतना अच्छा लग रहा है कि वापस आए हम यहाँ पे और वापस दें। चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। अच्छा, पैदल आए थे? हाँ, तो पैदल आए वापस थे। जाते वक्त का कराया था आपने मतलब? हाँ, अभी करवाया था। आते टाइम तो पैदल ही आए थे। परिक्रमा की, वहाँ की, 52 घाट की। अच्छा लगा। ये पहली बार आए हैं पुष्कर में? ये मंदिर के अंदर शादी होने के बाद में पहली बार आई हूँ। अच्छा, काफी साल हो गए। तो आप दोनों साथ में आए? शायद है ये ना। छोटी सिस्टर है। अच्छा, आप ये दोनों- भीलवाड़ा रहती है अच्छा, और मैं जोधपुर रहती हूँ। अच्छा, और- आप ही दोनों आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम दोनों ही आए हैं। सिस्टर्स टाइप। हाँ। हम दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। आपको कैसा लगा यहाँ के? बहुत बढ़िया। अभी तो हम खुद ही आपको explore किसी अच्छा, तो आपको किसी ने यहाँ बताया है या फिर आप खुद किस हिसाब से आए? आपको पहले मालूम था यहाँ पुष्कर के सावित्री और गायत्री माता का मंदिर का? हम थोड़ा तो नेट वगैरह पे सर्च किया। अच्छा मेन चीज़ ये थी कि हमें यहाँ पता है कि ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो अच्छा, थोड़ा उस हिसाब से। हाँ जी। पुष्कर में एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो कैमल फेयर लगता है ना, हाँ जी। उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है ये जगह। हाँ, ये तो उसकी वजह से तो हाँ, है। तो मंदिर वगैरह का तो मेन तो ये था कि यहाँ पे कैमल फेयर लगता है हर साल और बहुत बड़ा मेला लगता है। विदेशी लोग आते हैं, भाई ऊँट मतलब खरीदते हैं, बेचते हैं। तो यही चीज़ के लिए आए थे। फिर धीरे धीरे कि ब्रह्मा जी का मंदिर है, क्यों, किस वजह से बना है, फिर ऊपर उनकी पत्नियों का मंदिर है, तो ये सब से हमें पता लगा। फिर हम लोग इधर आ गए। अच्छा, एक्सपीरियंस करना। तो आप अपनी मम्मी नहीं है साथ में? नहीं, 6 महीने पहले मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। कोई बात नहीं। ये आपके भैया? हाँ, ये दोनों मेरे भाई हैं और वो मेरे फादर है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा यहाँ पुष्कर आके? बहुत अच्छा लगा। राजस्थान में पहली बार ही आए हम। अच्छा, पहली बार ही? हाँ, तो पहली यही सिटी है, तो एकदम होता है ना जब किसी नई जगह जाओ, बिल्कुल कल्चर डिफरेंट है यहाँ का। हाँ, फिर भी एक यहाँ की खासियत है, एक सुहाग चूड़ा चढ़ता है यहाँ पे। अच्छा वो यहीं से खरीदा जाता है। अच्छा। ये जो मंदिर है ना अपनी सावित्री गायत्री माता का मंदिर है ना, यहीं से चूड़ा और वहीं चढ़ा के और आपको वहीं पहनना होता है, जैसे हम लोगों ने अभी पहना है। अच्छा, कभी जब भी आपकी शादी हो तो ज़रूर आना एक बार यहाँ। और इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, सुहाग के लिए ही फेमस मंदिर ज़्यादा बोलते हैं इनको, सुहाग माता बोलते हैं। हाँ, और इनका व्रत करते हैं काफ़ी। हम तो इतना फास्ट नहीं कर पाते, बट काफ़ी लेडीज इतनी है कि वो मतलब उपवास रखती है, कुछ भी नहीं खाती है और ना कुछ पीती है, और फिर यहाँ आके और दर्शन करके उसके बाद वो जाके और अपना फास्ट उपवास वगैरह खोलती है, यानी कुछ फल फ्रूट लेती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेती वो यहाँ का। हाँ, तो बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये मंदिर। तो आप लोग और भी जगह गए होंगे पुष्कर में मंदिर वगैरह? यहाँ 12 मंदिर है मैंने सुना था। हाँ थे, लेकिन बट हमने क्या 52 घाट की परिक्रमा के लिए बोल रखा था हमने भी। 52 घाट का हमको स्नान करना है। हम लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं दोनों। ये मेरे अंकल की लड़की है। फिर हम लोग जोधपुर से आए, मैं, और ये भीलवाड़े से आई है, भीलवाड़ा रहती है। और यहाँ आके फिर हमने 52 घाट का स्नान किया है, फिर वहाँ पूजा करवाई है पंडित जी ने, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए। कार्तिक स्नान की वजह से ही हम लोग यहाँ आए। बहुत लोग आते हैं। हाँ। तो ये मतलब बहुत पवित्र महीना है। हाँ, यहाँ का है। फिर अगर जोधपुर वासी करते हैं तो वो वहाँ पे अन्ना सागर, वो अन्ना झरना भी है। वो जैसे यहाँ पे पुष्कर की मान्यता है, वैसे ही वहाँ पर अन्ना झरना की मान्यता है।
अगर मैं यहाँ जाके वहाँ नहीं जाती हूँ ना। अच्छा, मैं एक तो ज़रूरी माने चीज़ नहीं। पूछना चाहूँगी कि राजस्थान की ना बहुत सारी फेमस डिशेज है, जिसमें से एक जो सिग्नेचर डिश बोलते हैं वो दाल बाटी चूरमा। हाँ जी। तो इसके अलावा हमें और क्या ट्राई करना चाहिए यहाँ पे? आपको कड्डी और सोगरा, केर सांगरी की सब्जी होती है और कड्डी और सोगरा बनता है। वो यहाँ जोधपुर का भी बहुत फेमस है, बट यहाँ भी आपको मिलेगा वो, तो वो अलग ही डिश मिलेगी आपको खाने के साथ। उसमें उसमें बाजरी का जो बनती है, सोगरा जो बनता है, उसका चूरमा बनाया जाता है और वो कड्डी के साथ अलग से खाया जाता है उसको। बहुत टेस्टी बनता है। धन्यवाद। थैंक यू। ओके, वेलकम।